So this one records. इससे मैं recording मेरे पास रह जाएगी. Uh, oh, I think you have to give me permission to record from there. Yes, I recorded session. Right now it says recording has been working. Oh, okay. All right. I will All send right, you fine. the link. Just going to download it. Okay. All right. Perfect. We'll do that. So are you able to see the screen? Yes. So today we have, we are going to start the class. And Mm-hmm. before I'm going to proceed, I would like to know some details from your side because as a security professional, you have at least 5 years experience exposure on the same sort of domain uh, on CISA, okay, information security sort of things. Mm-hmm. So you have experience available. Do you want me to tell you what I've done? Yes, do you have information security experience for at least 5 years Yeah. or Well, I have near about 4 years of experience in information security. This is the fifth year running, but for the certification, I actually gave them a call and spoke with them because I have a master's. They will shave off 3 years of the requirement for me and 2 years of experience, which I already have, I will show. So, I mean, 2 years in the sense that that's all I need to show them. My experience kind of varies from penetration testing to risk assessment to security engineering to analysis. My last job, which I was at the company for almost 2.5 years, was a retail company based out of Houston, Texas. Um, we're basically a retail chain covering the southern and the central part of the US. And my job was basically anything and everything related to security because we had a very small team, and I used to report directly to our CISO. So okay. my job was onboarding a lot of products, doing a lot of things. Like I onboarded our email gateway, our firewall, which was Proofpoint, our EDR solution, enterprise detection response. That was Sentinel-1. I onboarded our AV, which was semantic endpoint protection, our single sign-on solution, Okta, and our scanning solutions. Before we had Qualys, then I onboarded Tenable.io. So basically a lot of stuff. And I used to help with compliance. I would help with SOC compliance, SOX audits. I would help with PCI audits. Okay. So it's a mixed bag. Basically, uh, टीम कंपनी बहुत बड़ी थी, टीम बहुत छोटी थी, तो सारा काम करना पड़ता था, which is a good thing. So I've developed a good sensibility of how an organization is supposed to be run, how it's not supposed to be run, security में क्या क्या चीजें चाहिए, और products को onboard करने का क्या तरीका होता है. Buying a product is just one thing, right? But उसको बाद में tune करना, उसके alerts देखना, that's a whole different ball game. Maintaining it generally is very, very difficult. So, depending on what team size and depending on the kind of company, depending on the expertise of the team, depending on, how technical they are, what their bandwidth is, what kind of products to onboard, what are their security needs, what can they do, what can they solve with policies and procedures, and what do they need products for? That sort of a thing. That's kind of what I do. Right now, I'm doing penetration testing, I'm doing security consulting. So that's kind of my experience in a nutshell. If you have any specific questions, please feel free to ask me. No, it's okay because you know what, the CISA is examinations or is certifications where you need to have some experience exposure on sort of things because it's a management certifications, right? Yes, First of absolutely. okay, so Absolutely. before I'm going to proceed, I'm just going to check it out the candidates eligibility criteria sort of thing so that after that you had done the courses that you say that yes, I know the basic fundamentals because you know what in this you know that in this CISA the 5 modules, okay, and in this five Okay. modules is more about the concept, the logic, okay. Suppose you are a manager, Okay. a security manager, and so what is your security approach in the company, okay?
And once you're doing the auditing sort of things, or Mm-hmm. you need to provide some guidance, or provide some security, you know awareness trainings in the company, or governance in the company, so that you should be a required some basic fundamentals to advance things. So the matter of fact that if you have experience, exposure on those sort of skills, then it is it's really good for you certifications, because CISA, CISM, and Absolutely. CISSP, these are some certifications, for the advanced certifications in the security prospects. Okay, if you're talking about certifications stuff like certified ethical hacking, or SANS, or CHFI, or LPT, Mm-hmm. licensed penetration testers, these are the certifications are like your entry level certifications. And in the if you're talking about the middle level certification, so CCSP, okay, one of certifications, or you can say that CHFI or LPT is one of the certifications for the candidates are going to do in the middle level of certifications. But if once we're talking about the advanced certifications like CISA, CISM, or CSSP, so you should be Mm-hmm. good approach and information security basic understanding, so that you have awareness about the the basic fundamentals, like the we talking about in this few slides later on. Mm-hmm. Right. All right, and it is at this particular certification like CISA or CISM, these are certifications are not going to be too much practical things, but the matter of fact that the exposure, what sort of your approach skills, like suppose you are working as a CISO in the company, or you're working as an information security officer in the company. So what is your Mm-hmm. approach? How do you going to provide a guidance and awareness trainings to all the people, because you are representing your company as a security professional. Right. Okay. And the second thing I'm talking about here, because suppose you are working as security officer, and the always the companies are preferred that third party auditing has been done from different companies. Okay, so PCB or some different companies will be going, or BSI company will be going to come your office, and then they will going to do some auditing in your company. So the matter of fact Mm-hmm. that whether you are representing your company, or whether you're going to perform the auditing from different vendors side to the client locations. So it is a step by step process, standard procedures need to be followed into the CISA or ISO 27000 sort of things. Mm-hmm. Okay, so there are so many similarities we can say that in the ISO 27000, because information security management system is one of the standards followed by the companies. But if you're talking about the CISA stuff like that, okay, so you are the security, the technical things also comes to the picture in here it is. Okay, because Okay. ISO is basically a sort of checklist programs. We have some checklist, we have 114 controls, we need to check it out the applicability of the statement of applicability on the particular business. Mm-hmm. So as per the applicability, we are going to provide assessment on next year's. But in the CISA approach, we should be awareness about each and everything about the company, and awareness training, governance, and information security, auditing. Okay, the number of things, my dear friend. It's a vast field. That is why, because most of the project managers, or the CISO or the CTO are going to perform CISA season certifications. So CISA, for those guys who have some 2 years or 3 years exposure experience on the auditing side or information security side, so that they have basic understanding the domains which we're talking about sometime later. Okay. So in this particular, if you just talking about into this, we have 5 types of domain. So the matter of fact that in this particular, whatever we're going to study, uh, Mm-hmm. this is all about the experience, my dear friend. It's not because I have the number of books available for ISAGA, CISA books, okay, and different study materials I have. But the most of the questions will be coming into the CISA examinations are from your experience point of view. First of all, Okay. you need to be understand what is all about, because every word in the CISA is matters a lot. So you need to be understand Okay. every word in the examinations, or for your understanding that what is all about is talking about here.
Okay, Mhm. like it looks like sometimes similar sort of things, but there's some difference between all those terms. So as a domain wise, or if we can say that it's a certification side, we have some information system and auditing processes. So it is 21% of the examinations things will be coming over there. So Mhm. we are not talking about what five things today, but we have gone to step by step. I already suggest you that Okay. we don't have to go for each and everything at the same time, because it's overload Got it. on your mind. That's what I don't want, and I would नहीं, like I to. know. Let's take it easy. एक एक करके करते, मैं ये नहीं चाहता, आपको बहुत नॉलेज है, आपने सारा मेरे को पढ़ा दिया ना, हमने ये क्या हुआ इतना सारा. नहीं, Hmm. let's take it step by step. I absolutely agree with you. Yes. So first of all, the information system and auditing processes, auditor types of auditing, number of things, my dear friends, into the system. So I will going to provide some informations over there. Okay, the key points, the bullet points, and okay, and I will going to share you some different type of books as well, so that you can going to study after that particular session, so that you have good understanding about all those things. For the matter of Okay. fact that in this CISA and CISA examinations are not not too much hard. If you have good understanding and basic common sense, you're going to use it. Okay, and basic fundamentals you have clear, you can easily pass out. It's not a matter of fact. But if you're talking about the CSSP, is a little tougher uh, as compared to CISA and CISM. I get that. Okay, so we will go further, and then it's the governance and management of IT. The second thing, and information systems, acquisitions, development, and implementations, information systems, operations and benefit, reliance, and protection of information assets. So if you have seen that is 21% is your domain first, and domain 5 is 27%, and Mhm. 23% is your what information system operations and resilience. So you have what go for 1, 4, and 5, then is it more than your 50%? You will get passing marks. The passing percentage is how much in CISA? In 50, 55, 60, you're right. Okay. There is All right. no guaranteed, but this is the sort of things which more than 55% to 60% I have a higher probability. So this is enough for you Okay. only All to right. understand. Okay, so auditing information systems, so providing audit service in accordance with the standards of asset organizations in protecting and controlling information systems. So before we going into this particular things, first of all, you need to understand about the information security, the data classifications, the data category, CIA tried, you need to be understand. So if you have any ideas about the CIA tried, okay, confidentiality, integrity, and availability, or second Mhm. thing is IEEE, identity, authorization, accounting, okay, and how do you going to protect the informations, and how do you going to controlling the informations? Yes, you just let me know, then I will going to add some more idea about it into the same. Well, protecting information, I mean, it will be on multiple levels, right? First, I mean, I know about the concepts of defense in depth. So if you're looking at concentric circles, the middle circle being, the most sensitive piece of information, Mm-hmm. and then outwards putting out the defenses. So if I'm talking about information at rest, encryption is a great way. Mm-hmm. You can use encryption, you can use any kind of block cipher to do your encryption, sorry, block algorithm, Mm-hmm. which uses block encryption. You can use that for data at rest, as far as I know. And depending on who, then you need to have some sort of a tree of access, in the sense that, least privilege. Only people who need to access need to really, get into that data, and that also depends on what kind of access they have. Are we talking about access to read, access to write, or both? Everybody does not need that kind of information. Like, let's say employee address. If that is sensitive information, somebody from the human resources department could need read and write access to to that information. But let's say somebody from finances, they don't need write access. They only need read access to that data. So defining what kind of access somebody needs to that kind of data,
again, how do they access it? How, are they accessing it directly? Is there some sort of segmentation done? Are they using MFA just in general to get into that information? Things of that nature. I mean, is that making sense? Yes, yes, it's I just would like to add some more things, because I Okay. already suggest you should be what, think like a management, think like a manager, Okay. like a CTO, in the same approach. Okay. Okay, so once you're just going for the providing audit services, okay, the standards. So first of all, you should Mhm. be awareness about the what are the standards. We need to set up the standards for the company, what type of standard it is. Okay, the company are Mhm. going to what are going to go for some ISO 27000 standard. They are going to follow it, or they are going to follow some PCI DSS compliances. Okay, and also Mhm. it is a HIPAA compliance for healthcare domain, or it is a FISMA domain sort of things. So first of all, as a security professional, or if you are going to do some audit planning strategies, you you're Mhm. going to plan for what auditing sort of things. So first of all, suppose you're going anywhere, and then just try to find it out. What is the business use case? What is the business is all about, and what type of standard they are going to follow it. Okay, Right. so this is things you need to be understand. And second thing is protecting and controlling. How do you going to protect the information? So as you're talking about the correct things, like you're going to do some, uh, encryption sort of things. Yes, integrity will be very important terms. So protecting the informations, you can say CIA. Okay, confidentiality, integrity, and availability sort of things will be into the protecting sort of things, right? You can say that. How can we going to your product confidential informations? You can protect your informations. Okay, if somebody is going to do some man in the middle attacks. Okay, so you're going to protect your information from doing a backup. Okay, somebody will going to do some DDoS attacks. Well, Okay, for man in the middle attack, why will I need backup for that? man in the middle attacks. No, no, no. It's not man in the middle attacks. It's integrity issues. So suppose your data is transit format, source to Right. destination will be going further sort of things. So if you That want would some be a digital certificates, confidentiality issue, right? Because the data is confidential. अगर man in the middle कोई करेगा तो वो data intercept करेगा, right? So that's about confidentiality. Integrity तो अगर वो data को manipulate कर रहा है, then it would kind of fall चेंज, into यस integrity. यस, अगर वो डेटा को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, राइट, इंटीग्रिटी में कुछ इशू आता है, तो हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स या फिर हम डिजिटल सिग्नेचर्स, जो तुम्हारा पीके होता है, उसको हम यूज करते हैं इसके अंदर। तो उसमें हम हैशिंग कैलकुलेट करते हैं, हैश वैल्यूज जो होती है ना हमारी डिजिटल हाँ. सर्टिफिकेट्स जो होती है ना, तो उसको हम इसमें देखते हैं कि यार हम जब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, राइट। सो अब जब हाँ जी. व्हेन यू आर वर्किंग, यू आर गोइंग टू स्टडी इनटू द सीसा, ओके, तो आपको सीसा में ध्यान रखना पड़ेगा, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, सीईएच, और एलपीटी, लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आती है काम, और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी काम आता है। ओके, सो एज ए अच्छा. जैसे प्रोटेक्टिंग की बात करते हैं और इंफॉर्मेशन को हाँ प्रोटेक्ट जी. करना है, तो एक एज ए हाँ जी. आपको यू हैव टू थिंक लाइक के फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो फोरेंसिक ठीक. इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें जो आपके पास एविडेंसेस होते हैं, वो कितने हम्म. आप वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या वो एडमिसिबल है इन द कोर्ट के अंदर? क्या वो एक्यूरेट है इंफॉर्मेशन जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो? तो दैट्स सेवरल क्राइटेरिया इज व्हाट कम्स टू द पिक्चर। हम जब हम अच्छा. कंट्रोलिंग की बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो कंट्रोलिंग तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो तुम्हारे होते हैं। अब सिक्योरिटी कंट्रोल्स तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हो गए, तुम्हारे फिजिकल कंट्रोल्स तुम्हारे हो गए, हम्म. राइट, और तुम्हारे इसके अलावा तुम्हारे टेक्निकल कंट्रोल्स तुम्हारे हो गए। तो देयर 10 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स की हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। मैं आपको एक बार चीज शेयर करता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया मिल जाएगा। वेट सेकंड। Damn it. Hold on, let me just put this on vibrate. There was that. So just if you just take a look into the asset security, right? So the technical controls की बात करते हैं, right? Technical controls ये है। तो हम टेक्निकल हम्म. कंट्रोल्स में क्या होते हैं एग्जैक्टली कि डायरेक्टिव कंट्रोल्स, रिटर्न कंट्रोल्स, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स, करेक्टिव कंट्रोल्स, रिकवरी कंट्रोल्स, एंड कंपनसेटिंग कंट्रोल्स।
तो ये टेक्निकल कंट्रोल्स का ही पार्ट होते हैं तुम्हारे एग्जैक्टली, राइट। ओके। अब आप बोलोगे इंक्रिप्शन कर लो, गेटवे लेवल सिक्योरिटी कर लो, आईडीएस आईपीएस लगा लो, या रेड 5 कर लो, या फिर हम क्लस्टरिंग कर देते हैं, या फिर हम एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉल्यूशन लगा देते हैं, या फिर हम कुछ ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कुछ लगा देते हैं। तो दीज आर द सम पार्ट ऑफ टेक्निकल कंट्रोल. So as a ठीक है। auditor, as a security professional, as an auditor, you need to be check it out the technical controls कितना उनका sound है, right? ठीक है। Same चीज हम we can going to apply onto the physical controls. This is the asset security part, right? The physical controls. So physical controls में आप जैसे CCTV की बात करते हो, या फिर आप फायर एग्जॉस्टर की बात करते हो, या फिर डॉग्स की बात करते हो, ओके, एंड गार्ड्स की बात करते हो, तो द नंबर ऑफ थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, मैन ट्रैप की बात करते हो, राइट। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट इनटू द सिक्योरिटी कंट्रोल्स, तो आपको सिक्योरिटी कंट्रोल्स का पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल में तुम्हारे ये रेडियस हैं, टिकास हैं, और रेडियस टिकास प्लस है, डायमीटर है, या फिर आपके पास मॉडल्स जो हैं जिसमें आपका ये होता है ना, एक्सेस कंट्रोल एबी, मॉडल्स। अबैक, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ओके, पॉलिश बेस्ड कंट्रोल्स। तो आप द मैटर ऑफ फैक्ट दैट गाइस व्हाट हैपन कि आपको जो ऑडिटिंग करते हो, राइट, आजकल मॉडर्न टाइम के अंदर जो ऑडिटिंग का जो है तरीका वो चेंज हो गया है, राइट, और टेक्नोलॉजी भी काफी चेंज हो गई है। तो आप ट्रेडिशनल वे में जाओगे, आप 55 ईयर्स ओल्ड ईयर टेक्नोलॉजी में जाओगे, तो वो आपको सब सर्वर्स की इंफॉर्मेशन, वो आपके जो व्हाट पॉलिसीज गाइडलाइंस, वो सब आपको पकड़ा देंगे, एक फाइल से बना के पकड़ा देंगे, ये लो जी आप ऑडिटिंग कर सकते हो। बट अब राइट नाउ द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी चेंज। तो आपको टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की ऑडिटिंग करनी है सपोज, बिकॉज बी प्रैक्टिकल माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज हाँ, ऑल द आजकल तो of course, ऑल द कंपनीज अब आर बात गोइंग टू ही अडॉप्ट द क्लाउड सिक्योरिटी। आप क्लाउड सिक्योरिटी का आप जब ऑडिटिंग करते हो, राइट, तो हाउ कैपेबल यू आर, क्यों, बिकॉज ISO 27000 इफ यू आर गोइंग टू डू इट, तो आपको केवल डॉक्यूमेंटेशन देखना है कि हाँ जी डॉक्यूमेंटेशन है, एज पर द पॉलिसीज, एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द गाइडलाइंस सेट कर रखा है, ठीक है जी, वी आर नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल थिंग्स। बट जब आप सीजा करते हो, तो आपको जो क्लाउड सिक्योरिटी है उसका भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए एग्जैक्टली। तो एजोर जो है एग्जैक्टली एजोर का करना है, या फिर आपको AWS का करना है, ऑडिटिंग करना है, तो आपको रिपोर्ट से काम नहीं चलना पड़ेगा। आपको उसके कंसोल में जाके और उसको पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो एजोर के अंदर जो तुम्हारा होता है सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, एजोर सिक्योरिटी सेंटर जो होता है एग्जैक्टली, वो तुम्हारा कंप्लीट ऑडिटिंग के लिए ही बना हुआ है। तो आपको किस तरह की ओके। सिक्योरिटी ISO 27000 करना है, या फिर आपको HIPAA कंप्लाइंस के थ्रू करना है, या आपको PCI DSS के थ्रू करना है, तो उसमें ऑल दो स्टेप्स दिए हुए हैं आपके। तो ठीक है। आपको जो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर जब आपको ऑडिटिंग करनी पड़ती है, तो आपको जितने भी फीचर्स होते हैं उससे बेंचमार्क वहाँ सेट किए हुए होते हैं ऑलरेडी। तो आपको उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि हाँ वो अगर उसके अकॉर्डिंग एज पर द माइक्रोसॉफ्ट ने वो सेट कर रखे हैं। अब आपको PCI DSS के अंदर जितने भी कंप्लाइंस होते हैं, या फिर आपके हाँ। ISO 27000 में जितने भी तुम्हारे वन फोर्टन कंट्रोल जो तुम्हारे होते हैं, उसको आप उससे वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ जी इसके अकॉर्डिंग जो माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एजोर सेंटर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे ISO 27000 के अंदर क्या क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रही है, यानी कि आपको जो गैप एनालिसिस होता है, क्योंकि आप तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से चलोगे, तो क्लाउड में क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्विस चलती है वहां पर, राइट, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी सेंटर होता है उनका, है ना, तो जी। वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑडिटिंग करते हो तो यू हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्लाउड सिक्योरिटी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ उसके अंदर, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया लग जाएगा। आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह भी करते हो? यस यस, करते रहते हैं, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देता हूँ तो उसमें काम आता है वो, राइट। तो हम जब हम बात करते हैं ना, मेरे को मैंने बताया कि आपको क्लाउड की सिक्योरिटी करनी है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल
जो AZ500 है सिक्योरिटी, एजोर सिक्योरिटी का, उसका आपको पता होना चाहिए कि कौन से सर्टिफिकेशन चल रहे हैं, कौन सी चीज में कहाँ मिलता है, क्योंकि आपको एक एज ऑडिट करते हो तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बात कर रहा था कि तो ये जो AC500 है, ये मतलब ऑडिटिंग का सर्टिफिकेशन है एजूर का? एजोर का सिक्योरिटी का है सर्टिफिकेशन। तो मैं एजोर की अच्छा ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो उसमें ये आता है काम में। अच्छा। ठीक है, अभी आप किस किस चीज की ट्रेनिंग देते हो? मैं AWS की, एजोर की, गूगल क्लाउड की, सीजा की, सीजन की, CSP की, साइबर सिक्योरिटी की, और सिक्स सिग्मा की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMP की, और टोगेफ की, कॉबिट की, सबकी कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये तो आपको करना ही करना है। इसमें check करना। अगर आपका अकाउंट होगा तो मैं उसमें आपको शो भी कर दूंगा। हाँ, मेरे पास एक्चुअली एजूर का है नहीं। आई थिंक AWS का मेरे पास था पहले, हाँ, बट एक्सेस करे हुए बहुत साल हो आप गए हैं। अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा ये चीज़ें। तो ये देखो, एजोर सिक्योरिटी सेंटर है ना, ये सिक्योरिटी सेंटर से आप दिख रहा होगा स्लाइड के अंदर आपको। हम्म तो हम्म। सिक्योरिटी सेंटर होता है तो वो इसी चीज़ के लिए बना हुआ है कि आपको सिम सॉल्यूशन होता है ना, कि सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट, कौन कौन से सिम राइट। सॉल्यूशन होंगे। एक तो उसके लिए, और एक आपको आइस आपका जो हो ना ऑडिटिंग के लिए होता है एग्जैक्टली। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आपको सिक्योरिटी सेंटर के अंदर। तो ये ओके। चीज़ इसी के लिए बनाई गई है कि आपका एज पर द कंप्लाइंस, कौन कौन से कंप्लाइंस को वो चलता है, कौन से कंप्लाइंस में वो नहीं चलता है एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा इसके अलावा, क्योंकि ये आपके जब हम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो हमको एक एविडेंस चाहिए होते हैं, राइट, क्लाउड के ऊपर। हम्म क्योंकि होता क्या है कि अगर अभी तो आप जैसे सीजा कर रहे हो, ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ TPRM की, थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट, राइट। TPRM में क्या होता है थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, कि आपने योर अकाउंट, ओके, एज योर अकाउंट नीड टू बी प्रोवाइड बाय द वेंडर्स, सप्लायर्स को आप प्रोवाइड करते हो credentials, everything, and they are going to access your cloud. Okay, so this is third party risk management. So we have to perform on the third party risk management same time. So उसके लिए मतलब different बेसिकली एक parameters तरीके हैं। से आप ऑडिट ही कर रहे हो उनका, जो थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट है। हम्म। ये बेसिकली गोइंग एंड ऑडिटिंग देयर सिस्टम की, उनकी क्लाउड की मतलब सेटिंग्स वगैरह, सिक्योरिटी सेटिंग्स जो है वो दे आर बेसिकली इन कंजंक्शन विद गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। हम्म। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि जब थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो हम जो PIM होता है, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट होता है तुम्हारा, और आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट होता है तुम्हारा, तो वो सब चीज़ें भी हम्म चेक करते हैं। साथ साथ में अपने जो ISO के कंप्लाइंस होते हैं, या फिर PCI DSS के कंप्लाइंस होते हैं, जो भी होते हैं तुम्हारे स्टैंडर्ड होते हैं, उनको मेट कर रहे नहीं कर रहे हैं। ओके। तो ये स्लाइड्स हैं, तो ये आपको मतलब हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्लॉकचेन कभी मान लीजिए प्रोजेक्ट मिलता है आपको, राइट, यू गेट द ब्लॉकचेन व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स प्रोजेक्ट्स, तो आपको ब्लॉकचेन का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एग्जैक्टली कैसे कैसे होता है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको CCSK का भी आइडिया होना चाहिए कि क्लाउड सिक्योरिटी में कौन कौन से NIST अप्रोच है, या फिर तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन कौन से होते हैं तुम्हारे क्लाउड के ना। तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए क्लाउड की, कि एग्जैक्टली कैसे क्लाउड काम करता है, डिप्लॉयमेंट कौन सा होता है, NIST अप्रोच कैसे काम करती है उसके अंदर। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स माय डियर, हाउ यू आर क्रिएटिव, हाउ डू यू नो ऑल दोस थिंग्स, डिपेंड उस पर करता है, राइट। तो हम इनमें नहीं घुसते हैं अभी, अपने में चलते हैं। got it, got it. But do we usually have like ऑडिटिंग के लिए जाते हैं? इज देयर लाइक अ स्टैंडर्ड चेकलिस्ट दैट एन ऑडिटर फॉलोज? मतलब कोई स्टैंडर्ड चेकलिस्ट होती है, कुछ होता है पैटर्न जो ऑडिटर मतलब बेसिकली लेके चलता है कि ठीक है मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है? यस यस, ये होता है, बट यार अभी बात क्या है कि जैसे कि अभी आप मान लीजिए ISO के कर रहे हो तो ISO का आपको मिल जाएगा, राइट। अब मैं कहता हूँ कि आप GDPR का करो, GDPR का कोई चेकलिस्ट नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो, कहीं सर्च कर लो, नहीं मिलेगा आपको GDPR का, है ना। हम्म और अगर मैं बात करता हूँ इंडिया का जो PDPR आने वाला है, जो इंडिया के अंदर है, जो गवर्नमेंट बिल्स बना रही है अभी, वो मतलब अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, राइट, अभी पार्लियामेंट के अंदर। तो अगर वो उसका इंडिया इंडिया का जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात करोगे ना आप, तो उसके अंदर जो ओके। वो 2000 के बने हुए हैं, पुराने, बहुत पुराने बने हुए हैं। अभी जो न्यू वाला है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी आने वाला है अभी, PDPR का। ओके। तो अगर आपको उसको लेकर आप कंपनी का ऑडिट करते हो ना, तो उसके अभी आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन अभी कुछ पता नहीं है, कहाँ मिलेंगे, क्या है, क्या चेकलिस्ट है, क्या नहीं है।
तो अभी जैसे कोई कंपनी की बात करते हैं कि आईएसओ करते हैं या फिर पीसीआई डीएसएस शुरू करते हैं या फिर हम किसी हिपा कंप्लायंस शुरू करते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट आपको मिल सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, हाँ कि एज पर चेकलिस्ट। बट चेकलिस्ट तो मिल जाती है, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो सीजा करने में ये होता है कि अगर आपको एक एक चीज, जैसे मैंने आपको एक फर्स्ट पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं राइट, तो फर्स्ट पॉइंट में अपने पास में 3 चीज चाहिए, स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, प्रोटेक्टिंग क्या होती है और कंट्रोलिंग क्या होती है। तो प्रोटेक्ट कंट्रोलिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो तुम्हारे होते हैं। अब सिक्योरिटी कंट्रोल्स तुम्हारे कितने टाइप के होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि टेक्निकल है, मैनेजमेंट है, फिजिकल है, एक्सेस कंट्रोल है। अब इसके अंदर भी तुम्हारे डायरेक्टिव कंट्रोल्स हैं, कंपनसेटिंग कंट्रोल्स हैं, डायरेक्टिव कंट्रोल्स हैं, ये सब चीजें आती है। अब आपको जो कंट्रोल्स के अंदर भी जो तुम्हारे हम सब कंट्रोल्स आते हैं, उसके अंदर कौन से ऐसे कंट्रोल्स होते हैं राइट, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है राइट, रिक्वायर्स इन्वॉल्व इन द कॉस्टिंग। और कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं देन वी डोंट रिक्वायर टू इन्वेस्ट द मनी राइट। If I'm talking about, if you're going to implement multi-factor authentication in the company, it is required some costing. Oh yes. And if you're talking about some directive controls like your policies, standard or guidelines, if you want to create, no need to give for the money. आपके जो existing managers हैं या फिर आपके जो भी बंदे हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, तो there is no costing involved into this, right? तो approval authority को देखना पड़ता है। तो as आप once you going for the auditing, okay, information systems auditing sort of things, तो आप you have to look a broader view, आपको broader view सोचना पड़ता है, हर एक चीज को सोचना पड़ता है, इन्वेस्ट कॉस्टिंग को लेकर सोचना पड़ता है, टेक्निकल चीज को सोचना पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होगा उसको सोचना पड़ता है, क्या क्या चीज अवेलेबल है उसके बारे में सोचना पड़ता है, और क्या इसका फ्यूचर गोल क्या होगा उसको भी सोचना पड़ता है। एवरीथिंग इज विल बी इन्वॉल्व। So that is why, and once I'm going to study about the CISA, CISM, OCISP, so every word is very important, like standards. So different type of standards, protecting. So this is how do you going to protect the information. So data classifications, data categorizations. ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ सीजा CISSP का। अगर आप CISSP करोगे तो उसमें भी यही मिलेगा, आपको अलग नहीं मिलेगा कुछ भी। तो आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले आपका जो डेटा होता है राइट, तो डेटा का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। भाई हमें प्रोडक्ट, एक कंपनी है राइट, आप ऑडिटिंग करने जा रहे हो, तो आपको पब्लिक एक्सेसिबल डेटा पकड़ा देंगे, तो आप उसका क्या ऑडिट करोगे, उसका क्या फायदा होगा कंपनी को, देयर इज नो यूज ऑफ इट, है ना। तो आपको जो ऑडिटिंग भी करना है तो आपको ऐसे डेटा का करना है जो कंपनी के लिए बेनिफिट हो, राइट। एंड आपको कंट्रोल करना चीजों को, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना है जो काम को हो सकते हो। Then talking about domain 1 affirms your credibility and offer conclusions on the state of an organization's IS, information security and information technology security, risk and control solution. तो हम जब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं राइट, तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, क्योंकि ऑडिटिंग करने की चीज होती है, तो कंपनी व्हाई द कंपनीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी फ्रॉम आउटसाइड पीपल। ऑडिटिंग तो आप भी कर सकते हो, कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिटिंग कर सकते हो आप, काफी है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, तो बाहर से आपको हायर करती है, या पीसीबी कंपनी होती है या फिर आप DSI कंपनीज होती हैं राइट, सो दे आर गोइंग टू डू ऑडिटिंग फॉर द कंपनी, थर्ड पार्टी कंपनी। So why it is so? What I'm trying to tell you, what is the difference between internal auditing and external auditing? External auditing, and what is the credibility will be on the company side. So any ideas you have regarding that? कि हम इंटरनल ऑडिट में क्या चीज करते हैं और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या करते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है? आई थिंक एक्सटर्नल ऑडिट की आपको जरूरत होती है जब आप किसी भी कंप्लायंस के थ्रू जा रहे हो, जैसे इफ यू आर पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनी, आई थिंक यू हैव टू बी कंप्लायंट विद GLBA, विद SOX, Klein-Leach-Bliley हो गया, Sarbanes-Oxley हो गया, यहाँ के हिसाब से, मतलब नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से। तो इंटरनल जो ऑडिट होता है, आई थिंक दैट इज इन प्लेस टू कीप सिस्टम्स रनिंग स्मूथ, कि चीजें जो है दे शुड स्टे अंडर रैप्स। I won't say under wraps, but basically they should follow the policies and procedures that are there, मतलब enforce करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है। इंटरनल ऑडिट का फिर काम होता है, एक्सटर्नल ऑडिट जब पिक्चर के अंदर आता है, जैसे आई डोंट नो हमारी कंपनी में यही था कि एक्सटर्नल, जैसे वी यूज्ड टू गेट ऑडिटेड बाय EY, तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है, बेसिकली EY कॉन्टैक्ट्स द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट
and then they in contact will, they will get in touch with all the internal parties to get whatever artifacts, proofs, screenshots जो भी चाहिए होते थे. Or internal audit is always present while external audit is happening in the company. तो जब भी जो interviews होते थे, कुछ भी होता था, internal audit would always be there. So I think they work both as like a monitor and as a guardian depending on the situation. Okay, okay, nice. So मैं आपको एक चीज भेजता हूँ. If you just take a look. So once we have done this, okay, right now, so information system auditing and processes. So you're just going to be asked to yourself that are you able to provide the answers all those things which I'm talking to you or not. So these are some questions, okay. So we were going to cover all those things. This is the CISA, CISM, CSV, everything is there into this. I'm going to send you this one, no problem with this. Okay. Click as well. So the matter of fact that I'm just going to send you this one, and in this, if you just take a look here in the upper side, so it's a CISA question is there. Okay. Okay. How can you plan an audit to determine whether information systems are protected, controlled, and provide value to the organization? So first of all, you're going to planning or auditing, right? And second thing is determine whether information systems are protected. That is why I always, emphasize on the words like protected, controlled, and provide value to the organization. So we are just going to do in the particular slide is a protecting, controlling, and standard sort of things and credibility sort of things. Okay. So it is going to be provide you all those answers from your questions answer. Because this is the questions I am taking from the ISACA side as well. So that's really beneficial for you for the future. Okay, so credibility is talking about the companies. Suppose you are working in a company and they are happy with the internal audit. Why? Once they're going for the client location, any client, and then the client will ask that question that yes, if I'm going to provide my information to you, okay, how trustworthy you are? How can I believe you that you are the right person who can procure my information? Right. So what will be the answer from your side? The right person who can procure my information. As in, एक बार क्वेश्चन मेरे को फिर से एक्सप्लेन कीजिए. आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी जो है, क्रेडिबिलिटी को कैसे पहचानेंगे? जैसे आप मेरे पास में आते हो क्लाइंट लोकेशन, मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपको बिजनेस देना चाहता हूँ, ठीक है? Oh, credibility. Okay, okay. मतलब basically, kind of doing. How can I trust you that you are the right person? Kind of a vendor assessment, right? So मेरे पास, depending on what I'm doing, I can provide them a SOC 1 or a SOC 2, type 1, type 2, or I can show them my AOC, like attestation of compliance, I'm compliant with PCI DSS standards. I mean, credibility का सबसे बड़ा तो वही मेरे दिमाग में है, like आप अपना compliance दिखा सकते हो उनको कि ठीक है, मैं SOC से compliant हूँ, PCI DSS से compliant हूँ, and when you see that, you can kind of say कि ठीक है, अगर ये लोग इन compliances already हैं, इनके पास ये compliances, तो इनके पास to some extent there is a security structure. They are talking about policies, procedures, things of that nature to secure data in their systems. Does that make any sense? The first difference is there, my dear. You are not going to provide SOC 1 SOC 2 report to the clients. No. SOC 3, the public accessible data, you're just going to provide to the clients. SOC 1 and SOC 2 from your internal organizations, because very confidential information about your data center. Yeah, but हम लोग तो like in North America, what
whenever we had to get like a new vendor, Mm-hmm. we would ask them for their No, vendors software. is, yes, Are vendors you is okay. compliant? Not the exact report, but they had to send us a page from their thing saying that we are compliant. Basically, जैसे AOC भेजते हैं बैंक को हम लोग attestation of compliance PCI DSS के लिए. हाँ, this is okay. This is okay, my dear friend. But SOC 1, SOC 2 report are different things. आप एक पेज पे छोटा सा बना के दे सकते हो कि हाँ, we are certified, we have SOC 1, SOC 2 report बनाते हैं, everything's fine. But if I'm talking about as a auditing prospects, the stakeholders, मैं आपका एक कंपनी का स्टॉक होल्डर बनना चाहता हूँ, यानी आपकी कंपनी को शेयर्स या डिबेंचर सेल करते, राइट, एंड आपको कुछ स्टेक होल्डर्स चाहिए पैसा लगाने के लिए. अब मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गोइंग टू चेक इट आउट कि वेदर यू आर द व्हाट्स योर क्रेडिबिलिटी ऑफ योर कंपनी, राइट. कंपनी लॉस में क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ किस लिए कि क्रेडिबिलिटी लेस होती है उसकी. एक मिनट होल्ड कीजिए. हाँ श्योर. हेलो, हेलो, आप लोग अंकल कहाँ पहुंच गए? आप जाऊँ क्या आपको लेने के लिए? अच्छा, मैं घर पे ही हूँ अभी तो. हाँ, मैं घर पे ही हूँ, तो आप मुझको अब जैसे आ जाओगे ना इधर दावण गेट या फिर बजरंग वाटिका के पास में, तो मुझे फोन कर देना, तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा सर. हाँ, बीच में तो फिर एक काम करता हूँ मैं कि मेरे जो कजन ब्रदर है ना, तो उनको मैं फोन कर लेता हूँ एक बार, वो कहाँ पर पहुंचे हैं, तो फिर मम्मी नहीं आ पाएगी, फिर एक्चुअली बाइक पे है वो, तो दिक्कत ही हो जाएगा सर. नहीं नहीं, गाड़ी से नहीं आए हम तो, वैसे ही आए थे बस से उस टाइम. हम तो उससे बस से आए थे पीडी कोच बस से, क्योंकि कोरोना का टाइम था ना, तो इसलिए हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, तो ये इश्यू था. तो अगर आप आ सकते हो ठीक है, नहीं तो फिर मैं मम्मी को कहीं आस पास में आपका पानी पीछे आपने बहुत बताया मुझे, तो मैं वहाँ पे लेके आता हूँ कहीं पर. हाँ ठीक है, ठीक. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आता है, आ जाइए, वेट करते हैं. घर पे ही हूँ मैं, तो वेट कर रहा था कि 3 बजे या 4 बजे कहाँ पर पहुँचे, तो मैंने कहा फ्री होंगे फोन करूँगा. ठीक है, आप जब आ जाओ यहाँ पर रावण गेट, तो मुझे बता देना, तो यहाँ से केवल 5 मिनट लगेंगे मुझे, तो पास में ही है रावण गेट से. हाँ, रावण गेट के अंदर ही है, बस 5 मिनट लगेंगे पहुँचने में मुझे. हाँ, राइट हैंड में यहाँ पर एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, के पास में ही है. हाँ, तो आप रावण गेट के पास में आके फोन कर देना मुझे, तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा. हेलो, यस. Yes. तो सो क्रेडिबिलिटी हम समझते हैं एग्जैक्टली कि आप कितने ट्रस्टेड हो. तो आपको जैसे आप ISO 27000 करते हो या हिपा कंप्लायंस करते हो या फिर PCI DSS कंप्लायंस करते हो, स्टैंडर्ड्स करते हो, तो वो आपको दिखाने पड़ते हैं, आपको शो करने पड़ते हैं. जैसे कि मैं अभी राइट नाउ वर्किंग हूँ, राइट, किसी कंपनी के अंदर वर्किंग हो, आप भी वर्किंग हो. अब हमारी कंपनी माइग्रेट होती है क्लाउड के अंदर, राइट. तो हमको पहले सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो AWS है, एजोर क्लाउड है, तो उनके पास में कौन कौन सर्टिफिकेशंस हैं. हमको एग्रीमेंट करना पड़ेगा उनके साथ में. किस तो किसके पास सर्टिफिकेशन है, मतलब समझा नहीं मैं. वो ITAR सर्टिफिकेशंस, ISO 27000 सर्टिफिकेशंस, जैसे आप ओके, मतलब कंपनी के पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है? सॉरी सॉरी. सर्टिफिकेशंस हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आप ही गॉट अपनी इट गॉट कंपनी इट. को क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए आपको सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा. जैसे कि मैं AWS एजोर की बात करता हूँ या फिर मैं किसी वेंडर की बात करता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे पास में आओगे तो मैं पहले चेक करूँगा कि आपकी कंपनी क्या या ISO 27000 सर्टिफाइड है, यस या नो. सेकंड थिंग, मैं आपको पूछूंगा कि आपकी कंपनी हिपा कंप्लायंस या PCI DSS कंप्लायंस है या नहीं है. आप ठीक बोलोगे है. यस या नो, तो मैं उसी से पहचान जाऊंगा कि आपकी कंपनी अगर वो मेंटेन करती है, PCI DSS करते हैं या फिर मैं हिपा कंप्लायंस करते हैं या फिर आप कहते हो कि ISO कंप्लायंस कंपनी, तो मैं अभी अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली कि आपकी कंपनी में एक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम चलता है. तो मैं अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, मैं आपको अपना क्लाइंट बना सकता हूँ, मैं आपके अपनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर सकता हूँ.
तो इसमें मतलब बेसिकली द क्लाइंट इज गोइंग टू, मतलब क्लाइंट बेसिकली पूछेगा कि आप अपनी सर्टिफिकेशन दिखाओ मेरे को, राइट, कि आप कंप्लायंट हो नहीं हो, क्योंकि या आई डोंट थिंक पब्लिकली तो पता थोड़ा ना चल सकता है कि कोई कंपनी अगर मतलब कंप्लायंट अभी भी है या नहीं है, हो सकता है लास्ट ऑडिट फेल हो गया हो। नहीं, तो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं। इंटरनल मीटिंग्स जब आप सेल के लिए जाते हो ना, किसी क्लाइंट पे सेल के लिए जाते हो मान लीजिए, और जैसे हाँ, हमारे जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, आप कहीं क्लाइंट के पास में जाते हो तो दिस इज क्वेश्चन विल बी आस्क। ये तो सबको पता होता है कि क्या कंपनी है, क्या क्रेडिबिलिटी राइट, है, क्या राइट, मार्केट है, कितना शेयर चलता है। एक मैं मीडियम साइज कंपनी की बात कर रहा हूँ। एक एमएनसीज होती है तो उनके तो शेयर्स पे पता लग जाता है कि कितने शेयर्स हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो उनका सब कुछ पता लग जाता है क्रेडिबिलिटी का। बट एक मीडियम साइज, एक स्मॉल कंपनी की बात करता हूँ, तो उसमें पता नहीं लग पाता है। तो उसमें वो देखते हैं कि आप सर्टिफाइड हो या नहीं हो उस चीज़ों के लिए। उसके लिए बात करता हूँ। ठीक है। अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करता हूँ, अमेजोन की बात करता हूँ, तो देर इज नो नथिंग लाइक दैट। उनके तो शेयर्स होते हैं, शेयर से पता लग जाता है कि उनके कितने स्टेक होल्डर्स है, कितने कितने अमाउंट के है। अब जैसे गूगल का है या फिर फेसबुक का है, तो हमें पता है एग्जैक्टली कि इनका तो स्टेक होल्डर्स इतना है, तो देर इज नो, बात ही नहीं आती है। बट जब हम्म, हम कोई भी क्लाइंट लेते हैं, जब हम थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो हम पहले ये चेक हम्म, करते हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। है ना। तो वो सब चीजें इसमें आती है। So, we talking about in the information systems audit standards. We have some different standard guidelines, codes of ethics, business processes, types of controls, risk-based audit planning, types of audit and assignments, and audit project management, sampling methodology, audit evidence collections techniques, data analytics, and reporting and communications techniques. So, jitne aap ye right now, if you're just talking about into all those planning, execution sort of things, this is all हम्म, about the theoretical concept, my dear friend. But once we're ठीक talking about in the practical aspect की बात करते हैं, right? If we talking about the practical aspects, so ठीक है। different. This is very different approach. This is you want to हम्म, study theoretical concept, you understanding that's okay for you. You don't understanding yeah auditing sort of standards, sort of things. But ओके। what we're going for, the going for auditing sort of stuffs, right? So that you need to uh, going to take a planning first of all, strategic planning. You need to do going for any auditing sort of stuff. Okay, so if we're talking about the information security audit standards and guidelines, so आपको कुछ terms you need to understand, terms का पता होना चाहिए, right? So baselines, right? The policies, the standards, the guidelines, the benchmark, okay, and the types of controls like business processes, how the business process is going to be working. So once the board of directors meeting will be happened, and how would you say that your company is eligibility of ISO 27000 or PCI DSS or auditing sort of things you need to perform on it? How do you say that? How do you analyze all those things? आई हैव नो क्लू। We need to do some gap analysis, okay? Because every company are working, okay, are doing their jobs. But वन क्वेश्चन, yes, वन क्वेश्चन। तो हम लोग मतलब ये पूछ रहे हैं कि हमारी कंपनी को क्या जरूरत है आईएसओ या किसी और कंप्लायंस की, yes, इज दैट द क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है एग्जैक्टली कि राइट, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो, स्मॉल कंपनी या मीडियम कंपनी, आप जी, you are a cyber security consultant or you are a CISA auditor stuff, right? जी, So ठीक how है। do you say that this company required ISO 27000 certifications or PCI DSS or this is compliance? वो ऑडिटिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका क्या जवाब आपके पास में? मेरे को पीसीआई उसका, मेरे को सिर्फ पीसीआई का पता है। अगर वो लोग क्रेडिट कार्ड पेमेंट ले रहे हैं and coming from the big four, that is Mastercard, Visa, Amex and I think JCB, तो अलग अलग tiers होते हैं level, you know, it will be like a level 1 mandal, level 2 level, actually it's the other way around, but अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट ले रहे हो अपनी वेबसाइट पे या अपने पीओएस सिस्टम पे किसी पे भी, तो आपको पीसीआई डीएसएस की कंप्लायंस आपको करनी होगी। अगर आप पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनी हो तो आई थिंक आपको शायद, मेरे को आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई थिंक शायद सॉक्स होता है, सार्बेन्स ऑक्सली, उसकी कंप्लायंस आपको चाहिए होती है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर होते हैं या कुछ होता है तो उसके लिए एक यहाँ पे एक्ट है जीएलबी, व्हिच इज क्लाइंट लीज लाइबिलिटी,
उसका शायद आपको कंप्लायंस चाहिए होता है, पर मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि जीएलबीए की कंप्लायंस कैसे होती है। सॉक्स मेरे को पता है कि सॉक्स के ऑडिट्स होते हैं, पीसीआई डीएसएस के भी ऑडिट होते हैं, हमारे क्यूएसए आते हैं जो क्वालिफाइड सिक्योरिटी असेसर है, वो लोग आते हैं, वो लोग ऑडिटिंग करते हैं, देखते हैं। आई लिव्ड थ्रू अ कपल ऑफ पीसीआई ऑडिट्स। तो ये पता है। आईएसओ का मेरे को नहीं पता कि आईएसओ की मतलब क्यों आईएसओ चाहिए, की कंप्लायंस चाहिए, मेरे को नहीं पता उस चीज के बारे ओके, सो द मैटर ऑफ फैक्ट दैट इंटरनल ऑडिट जो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपनी होती है इंटरनल ऑडिट करती है, कि अपने में। इंटरनल एम्प्लॉयज ही करते हैं उस चीज को। जैसे आप हो गए तो जी। आप अपनी कंपनी का करते हो, मान लीजिए इंटरनल एम्प्लॉयज। अब उसमें बहुत सारे गैप्स मिलते हैं आपको, यू नो व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ठीक ऑफ है। गैप्स, बहुत गैप्स मिलते हैं उसमें। वो जो कितने सारे गैप्स मिलते हैं तो उनको इंटरनल एम्प्लॉयज, जैसे फाइनेंस का कर रहे हो मान लीजिए आप, तो आप एज ए कंपनी के एम्प्लॉयज हो, तो आपका जो आपने जो भी इंटरनली ऑडिट किया होगा वो अपने जी। बेनिफिट के लिए, फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर कंपनी बेनिफिट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और उसमें थोड़ा ट्रस्ट कम रहेगा किसी को भी, आउटसाइड पीपल जो भी आएगा, कोई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आएगा, तो ही विल से दैट यस मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर थर्ड पार्टी से कराओगे तो उसका सर्टिफिकेशन होगा तो मैं ट्रस्ट जरूर कर सकता हूँ आपके ऊपर, ठीक है। राइट। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट की राइट, आपको ऑडिटिंग करना पड़ता है और थर्ड पार्टी से करना पड़ता है, ठीक है। वी हैव रिक्वायर्ड सम सर्टिफिकेशन सॉर्ट ऑफ स्टफ, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टॉकिंग अबाउट हियर, राइट। 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 ओके, कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे आंखों का हाल खराब हो जाता है। My God. yes, yes, it will take. So in this particular slide is talking about some what business processes. तो बिजनेस प्रोसेसेस आप क्या समझते हो? जैसे कंपनी है, एक प्रोसेस चला रही है मान लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय हम्म। प्रोसेस? एक इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, एक आउटपुट होगा, राइट। राइट। तो इसमें आपको एक तीन चीजें, पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो पीपल का प्रोसेस क्या है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली, है ना। तो वो आपको, जो उनके जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस का ही तो आप ऑडिट करते हो, किसे करोगे आप ऑडिट, जी। है बिल्कुल, ना। कि प्रोसेस जो बनाए हुए हैं वो फॉलो हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जो प्रोसेस होते हैं, तुम्हारा जो इनपुट होता है, मान लीजिए इनपुट हम्म। डालते हैं, साथ में जो प्रोसेस होता है बीच में, और जो आउटपुट हम्म। निकलता है उस चीज का, तो जो आपके जो प्रोसेस कितने साउंड हैं, आपके प्रोसेस कितने एफिशिएंट हैं, कितने इफेक्टिव राइट। हैं, ठीक है, राइट। कितने गोल ओरिएंटेड हैं। अब जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं ना, आपका जो मैं बोलता हूँ इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, व्हाटएवर, जो कंपनी का विजन है, कंपनी का विजन है, मिशन है, उन सबको, जो कंपनी का गोल होता है, उन सबको देख के बनाए जाते हैं। सिंपल फर्स्ट थिंग, राइट। जी। सेकंड थिंग, जब हम प्रोसेस की महेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आई थिंक लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है। यस सर, बिल्कुल सर। यस, आई थिंक इट्स गोना वर्किंग। यस, इट ऑडिबल हम्म। राइट नाउ? हाँ जी। ओके, सो जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसेस में गैप्स होते हैं, उसी का हम ऑडिटिंग करते हैं। सिंपल। टाइप्स ऑफ जी। कंट्रोल्स मैंने आपको बताई दी हैं एग्जैक्टली, कि प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डायरेक्टिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स, कंपनसेटिंग कंट्रोल्स, एंड देयर मल्टीपल थिंग्स। तो आई विल गोइंग टू शेयर ठीक यू है। दिस पर्टिकुलर स्लाइड, तो आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया लग जाएगा, ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन है। राइट। जो प्रोसेसेस होते हैं वो कंपनी डिफाइन करती है ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडलाइंस गिवन बाय द कंप्लायंस, राइट? जैसे आईएसपीसीआई की कंप्लायंस के हिसाब से ही गाइडलाइंस बनेंगी, क्योंकि आप पीसीआई कंप्लायंट हो, एंड दैट्स व्हाट वी विल ऑडिट, राइट? कंपनी अपनी तो ऐसे नहीं बना सकती है। तो देयर इज देयर सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कोई इसका मतलब फॉर्मेट होता है, कुछ होता है कि प्रोसेसेस कैसी होनी चाहिए आइडियली? देखो, प्रोसेस की, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो आपको थोड़ा सा वाइड अप्रोच लेना पड़ेगा। वाइड अप्रोच का मतलब कि कंपनी जो है वो कॉबिट है, जो अपना फ्रेमवर्क्स होते हैं तुम्हारे, कॉबिट है, आईटीएल है, ये टॉगेफ है, राइट। टॉगेफ राइट। 9.2 जो वर्जन आया हुआ है एग्जैक्टली। अब हम्म। जो कंपनी का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, राइट, जी। जैसे आप एक सॉक इम्प्लीमेंट कर रहे हो मान लीजिए कंपनी के अंदर, या न्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हो सॉक के नॉक को, अब हम्म। उसमें आपको सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्रिएट करना है,
या एंटरप्राइज आर्किटेक्चर आपको डेवलप करना है, तो जी। आपको या फिर आपको मैं कहता हूँ कि आईटीएल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं फ्रेमवर्क्स, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट? तो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस, व्हाट इज द बेस्ट फ्रेमवर्क्स, वो आपको जो कंपनी के जो बेंचमार्क होते हैं, यानी कि सेम जैसे आपकी कंपनी है, रिटेल कंपनी है, अब दूसरी कोई रिटेल कंपनी है, उसका क्या बेंचमार्क है, आपको सेट करना पड़ेगा पहले। उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग आपने देखा कि आईटीएल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चेंज मैनेजमेंट इनका प्रोसेस ऐसा होता है कि चेंज वर्जन है, चेंज कंट्रोल है, चेंज एडवाइजरी बोर्ड है, ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट आता है, फिर प्रॉब्लम मैनेजमेंट, फिर तुम्हारा चेंज मैनेजमेंट आता है, फिर रिलीज मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, द नंबर ऑफ थिंग्स राइट। वर्किंग, राइट? तो इसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होते हैं वो आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। कर दिया आपने प्रोसेस डिफाइन, आप इन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से गैप मिलेंगे आपको। गैप का मतलब, जैसे कि आप यू आर ए ऑडिटर, यू हैव सीन दैट दिस इज रिस्क मैनेजमेंट आप कर रहे हो, रिस्क असेसमेंट कर रहे हो आप, once you're going to do risk assessment, right, then what you feel that there is a gap in the urgency, आपका नेटवर्क बैठ जाता है कंपनी का सॉक एनवायरनमेंट के अंदर, या कोई फायरवॉल बैठ जाता है, वहां पर आपने एचए नहीं लगाया हुआ, हाई अवेलेबिलिटी नहीं है वो, ड्यू टू दिस योर नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर हैम्पर्ड, ये आपके लिए रिस्क है, ठीक है? तो ऐसा जो रिस्क है वो इंसिडेंट होके आता है, इंसिडेंट आता है कैटेगरी के अंदर, तो इंसिडेंट आता है तो उसके बाद में जो कैटेगराइजेशन होता है तुम्हारा, उसको आपने कितनी अर्जेंसी दे रखी है, क्या इसकी प्रायोरिटाइजेशन कितनी है, कितनी प्रायोरिटी है उसकी, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, क्या है उसकी प्रायोरिटी। महेश, आपकी ना बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। वेट सेकंड, यस, इज इट फाइन नाउ? यस, अब नहीं, मैं ऊपर हूँ। आपकी आवाज ठीक आ रही है, बट वो बैकग्राउंड में एक्चुअली आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। आई थिंक व्हाटएवर घर में पीछे जो हो रहा है या बाहर हो रहा है, उसकी अरे आवाज इधर आ रही है। मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा सा, अरे मम्मी, मम्मी, अरे थोड़ी गेट बंद कर दे रही आवाज आ रही है, बट बारह बात करो, अरे आवाज आ रही है, गेट बंद कर दे। Yes, right now it's fine. I've sent them. बेहतर है। सो Yes. हाँ ठीक है। सो आप बताइए क्या कह रहे थे। I'm sorry, I couldn't hear you, I was distracted. अब बताएं। मैं ये करता कि जैसे आईटीएल प्रोसेस हो गया, या फिर कॉबिट का हो गया, फिर टॉगएफ का लेते हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की बात करते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, आप सॉक की बात करते हो, राइट? तो सॉक रिपोर्ट्स की बात करते हो, या फिर आपके एक देयर इज वन इंसिडेंट विल बी हैपन, लाइक आपका फायरवॉल बैठ गया, राइट? और वी कैन से दैट कोई भी एजेंसी आ गई, तो एज अ रिस्क असेसमेंट यू आर सिक्योरिटी ऑडिट करने आए हो आपने देखा कि दिस इज वेरी असेसमेंट कि आप ये रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, राइट? इसके बिना क्लाइंट हैम्पर हो रहे हैं आपके, या फिर यूजर्स की क्रेडिबिलिटी प्रोडक्शन वेस्ट हो रहा है, राइट? तो उस टाइम आप देखोगे एग्जैक्टली कि इसकी अर्जेंसी क्या है, राइट? इसकी प्रायोरिटी कितनी सेट कर रखी है, जो टेक्निकल टीम है, व्हाटएवर जो भी टीम काम कर रही है इसके ऊपर, व्हाटएवर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करो कि उसमें आप गैप एनालिसिस करना, आपको जो गैप है ना, गैप को ढूंढना है आपको एग्जैक्टली उसमें, आपको टेक्निकल भी नहीं जाना इतना, और आपको गैप भी निकालना है चीजों के अंदर। राइट, जैसे एम्प्लॉय टर्मिनेशन वगैरह का होता है मोस्टली, कुछ कुछ होता भी है कि हो लाइक सकता है, एम्प्लॉय यस, हाँ एनीथिंग। टर्मिनेट होते ही यू वांट द गाय टू बी, उसकी डीएक्टिवेट करनी है, एक्सेस जैसे करनी है उसी दिन करनी है, विद इन 12 आवर्स करनी है, वो तो डिले हो रही है, तो उसके लिए आई थिंक यू डू काइंड ऑफ ऑडिट्स, यू चेक की टर्मिनेशन डेट कब थी, एंड देन तो एक्सेस कब डीएक्टिवेट हुई थी, तो भाई बीच में इतना टाइम क्यों आ रहा है, दैट्स अ काइंड ऑफ गैप, राइट? मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जस्ट जैसे व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट स्टैंडर्ड क्या है एज पर द आईटीएल, एज पर द स्कॉबिट, एज पर टॉगएप, आपने को तीनों फ्रेमवर्क्स पता होने चाहिए आपको, एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल, और यू कैन से दैट एज ऑडिटर, आपको लॉज का पता होना चाहिए, जितने भी लॉज हैं, राइट? जैसे ऑस्ट्रेलियन सर्ट है, और अपना यूएस की बात करते हैं तो वहाँ पर फेडरल लॉज चलते हैं, आपको पता है ना? और यहाँ पे इंडियन इंडियन आईटी एक्ट ऐसा कुछ होता है इनका एग्जैक्टली, है ना? तो आपको जिस भी कंट्री का आप कर रहे हो ऑडिटिंग, राइट, तो आपके लॉज का पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लॉज होते हैं, राइट?
आपको वहाँ के जी। रेगुलेशंस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, रेगुलेशंस उन सबका पता होना चाहिए यार। तो सिंपल जी। कि क्या रेगुलेशंस है इस कंट्री का रेगुलेशंस है। जैसे कि आप एक स्टार्टअप बिजनेस लगा रहे हो तो उसमें रेगुलेशंस होते हैं तुम्हारे। जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ तो IRDA तुम्हारा होता है, जो टेलीकम्युनिकेशंस के लिए होता है, तुम्हारा रेगुलेशंस होते हैं तुम्हारे। अब मुझे एक कंपनी लगानी है टेलीकम्युनिकेशंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल IRDA से मुझे अप्रूवल अथॉरिटी से लेना पड़ेगा, दस्तकानी होती है, राइट। तो देयर नंबर ऑफ थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको लॉज रेगुलेशंस को आप थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एग्जैक्टली। साथ साथ में आपको जो भी राइट। कंप्लाइंस होते हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए आपको एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल। दिस मैंडेटरी फॉर पर्टिकुलर सीजा। ओके। तो समझ सकता इसके हूँ। अलावा आपको गवर्नेंस का पता होना चाहिए। गवर्नेंस का मतलब कि जो टॉप मैनेजमेंट है, CTO है, CISO है, या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, स्टेक होल्डर्स है, व्हाट इज योर हाँ। अप्रोच, उनकी अप्रोच क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर कुछ भी सिक्योरिटी ब्रीच हो गया कंपनी के अंदर, हाँ। तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन ओके। एंड व्हाट दे आर डूइंग इट टू मिटिगेट दिस पर्टिकुलर रिस्क, राइट। ठीक है। तो वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स करते हैं, या फिर वो सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर वो तुम्हारे टेक्निकल कंट्रोल्स के लिए न्यू फायरवॉल्स, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, व्हाटएवर द नंबर ऑफ थिंग्स। तो कहने का मतलब ये है जी। कि जो प्रोसेस जो हमारे होने चाहिए, जो तुम्हारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, या फिर जो हमारे कॉपी टॉगेफ है, या फिर व्हाटएवर जिसको भी फॉलो करते हैं मान लीजिए, हम्म। वो आपको पता होना चाहिए। उसको देखते हुए आप उनके जो प्रोसेस चल रहे हैं, मान लीजिए एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो चल रहे हैं, वो कितने कैपेबल हैं, और कितने उसके अंदर गैप मिलेंगे आपको। दिस इज अबाउट द प्रोसेस सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू नीड टू बी चेक इट आउट, ठीक है। राइट। ऑलराइट। एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, सो वी हैव ऑलरेडी सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हमने पढ़ी दी है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको डायरेक्टिव कंट्रोल्स का मतलब कि डायरेक्शन, राइट। तो पता लग गया आपको भाई डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कौन देगा, बट टॉप मैनेजमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड सम डायरेक्शन। So top management, what they're doing it, they are going to create some policies. They will going to ओके। create some standards. ओके। This is not a responsibility for the security professional. This is responsible from the top management, the CTO, the CISO. जो भी डायरेक्टिव कंट्रोल्स होंगे, जो भी पॉलिसीज बनेंगी, जो भी स्टैंडर्ड सेट होंगे, वो ऊपर से बन के आएंगे, बात आप ठीक कह रहे हैं। राइट। और उसको जो फॉलो करेंगे, राइट, फॉलो जैसे आप लोग करेंगे, हम करेंगे, या कंपनी के यूजर्स फॉलो करेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। जैसे हम बात करेंगे गाइडलाइंस की बात करेंगे, हम स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, तो कंपनी ने सेट कर दिया कि हमारा एक SOP स्टैंडर्ड प्रोसीजर, SOP हमारा ये है, ये हमारा प्रोसेस है। आप उसको मानते हो नहीं मानते हो, वो एक सिक्योरिटी का अलग कंसर्न होता है, उसमें वो गैप मिलते हैं यार आराम से, वो IT की अलग प्रॉब्लम हो जाती है वो। लाइक ठीक। सेम टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, आप प्रिवेंट कैसे करोगे, तो आप, मैंने आपको बताया एग्जैक्टली कि आप इनक्रिप्शन लगा दीजिए, VPN साइड टू साइड VPN कर दीजिए आप, है ना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर दीजिए, या 8 डिजिट का पासवर्ड कर दीजिए, 90 डेज तक पासवर्ड आपका एक्सपायर कर जाएगा, वैसा कुछ कर दीजिए। प्रिवेंट कर रहे हो आप चीजों, डिटेक्टिव कंट्रोल्स। PCI DSS के हिसाब से 90 डेज के अंदर पासवर्ड रोटेट करना होता है ना। यू नीड लाइक 8 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग विद अल्फा न्यूमेरिक, बट उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं बोलते वो लोग, राइट? वो बिल्कुल बिल्कुल, वो एज पर द कंपनी, एज पर द पर्टिकुलर जो पासवर्ड पॉलिसीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि एज पर द स्टैंडर्ड ये होता है, बट बाकी आप बाकी देख लीजिए आप कैसे करना है आपको इस चीज के अंदर। तो ये डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं एग्जैक्टली। बाकी एज ए सिक्योरिटी की बात करते हैं, एज ए ऑडिटर की बात करते हैं, तो दे विल गोइंग टू चेक इट आउट ऑल दोस थिंग्स। तो वो नॉन कंप्लायंस NA निकाल देते हैं इसके अंदर कि भाई आपका जो पासवर्ड पॉलिसीज है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। And if you're talking about some, what the idea, I will forget this idea, so no problem with this. I will let you know. Uh, yes, if you're talking about some detective महेश, controls. आपका बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। नहीं नहीं, बंद कर यार, आवाज आ गई यार, कहीं करो ध्यान से। एक्चुअली मैं अपनी यार मासी के घर आया हूँ अभी जयपुर में, तो अभी मैं ओह अच्छा अच्छा। शिफ्ट होऊंगा 2 दिन बाद में, संडे तक, तो फिर आपको कोई अच्छा प्रॉब्लम अच्छा। नहीं आएगी उसके अंदर। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, घर में बच्चा दर्द हो गया, आई वो अंडरस्टैंड, भी नॉट अ प्रॉब्लम।
मैं बोल देता हूँ मम्मी एक दरवाजा बंद कर दाढ़ी थोड़ा सा आवाज आवाज बच्चा की तो तुम वहां बाहर जाने तो थोड़ा सा टाइम लगा तो कुछ करना मैं बाबू बाबू जो कुछ टाइम के बाद फोन कर सकते को फोन आया जो मौजी को ओके सो यस तो हमने प्रिवेंटिव की बात की अब हम डिटेक्टिव कंट्रोल्स की बात करते हैं डिटेक्ट अब कोई भी चीज डिटेक्ट हो रही है अगर यू आर सिटिंग इन ए कंपनी and this is very you know what in this company the cyber crime will be happen if the cyber crime will be happen how you going to be detect Well, you can have your IDS, that's one. You can have login timeout, that's another. Detective और क्या होगा? You can have your, I mean, कई चीजें हैं वो डिटेक्टिव और प्रिवेंटिव दोनों के अंदर आ जाती है जैसे आपका AV हो गया, नेक्स्ट जनरेशन AV हो गया, EDR सोल्यूशन हो गया, EPP सोल्यूशन हो गया, तो वो डिटेक्शन और प्रोटेक्शन दोनों करता है. no right you're right but you're just talking about some you know what different things detective में क्या हो गया exactly if you talk about SIM solution आपने पढ़ा होगा security incident event management SIM solution Splunk ArcSight Logarithm, yeah, I know. ओके Insigniam. सिस्को वाले इन्वॉल्व जो तुम्हारे होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं चीजों को राइट अब हम इससे भी थोड़ा एडवांस चीज बात करते हैं SOR की बात करते हैं सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेशन रिस्पांस तो तुम्हारे तो तुम्हारे जो सेट इंटेलिजेंस होते हैं रिपोर्ट्स बनती है तुम्हारी थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अब मान लो एक साइबर क्राइम आ गया साइबर क्राइम हो गया यू डिटेक्ट स्पेसिफिक आईपी एड्रेस तो अगर आप इफ योर कंपनी आर यूजिंग सम SOR सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांस ऑटोमेशन रिस्पांस प्लान अगर वो सोर यूज करती हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो आईपी एड्रेस डिटेक्ट हुआ है उसकी प्लेबुक होती है क्या रिस्पॉन्स करना वो कंप्लीट ऑटोमेशन होता है कंप्लीट ऑटोमेटिक हो जाता है चीजें Okay. ठीक है सिम मैंने सॉल्यूशन कभी भी समझ नहीं यूज करा है. Is that a product or is that a policy? What is that? इट्स सॉर्ट ऑफ जैसे आपने सिम सॉल्यूशन यूज किया है इट्स लाइक ए सॉफ्टवेयर मैंने logarithm यूज करा है. मैंने onboarding करी हुई है logarithm की, but I mean they have this thing called smart response जिसके अंदर आप कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, बट आई डोंट नो इफ दे एक्चुअली, आई मीन कंपनीज में हम तो मतलब वी कुड नॉट ट्यून इट वेल इनफ कि हम लोग इम्प्लीमेंट करें स्मार्ट रिस्पांस को जो ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है, बिकॉज दे कैन बी वेरी वेरी corrosive हर in जगह the यूज sense नहीं that होता है सोर हर जगह यूज नहीं होता सोर हमेशा यूज होगा तुम्हारा जहाँ पर साइबर सेल होते हैं बड़े बड़े जैसे मुंबई में है okay अपने साइबर सेल है इंडिया का तो वहाँ पर यूज होते हैं okay जैसे साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस जहाँ पर रिपोर्ट्स होती हैं जहाँ पर कंप्लीट ट्रैफिक आता है राइट तो वहाँ पर ये सोर यूज होते हैं एग्जैक्टली आप okay डेटा सेंटर में या फिर सॉक सॉल्यूशंस के अंदर जो स्मॉल वाले होते हैं उनमें चल जाता है बट जो एक कॉर्पोरेट लेवल का होता है एग्जैक्टली जो पूरा कंप्लीट इंडिया का जो है मुंबई के अंदर जो साइबर सेल है एग्जैक्टली वहाँ पर सोर यूज होते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स होते हैं तुम्हारे राइट लाइक चाइना से होते हैं राइट रशिया से होते हैं एग्जैक्टली तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ रहता है कि जो डिफेंस होता है मतलब डेटा होता है या फिर तुम्हारा गवर्नमेंट डेटा होता है ना उन पे होता है तो वो कहाँ से मतलब वो जो तुम्हारा मुंबई में हमारा जो है साइबर सेल है उसके थ्रू तुम्हारा डेटा बाईपास होता है तो अटैक कहाँ होगा जो मेन जगह है वहाँ पर तो वहाँ पर हम SOR लगाते हैं वहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सोर जैसे मैं इफ आई एम वर्किंग एज ए सिक्योरिटी हैंडलर ओके और सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हूँ मैं कंपनी का या फिर मैं एक थ्रेट रिस्पॉन्स प्लान का बंदा हूँ मैं सॉक के अंदर तो मेरे को हर चीज मैनुअल करनी पड़ती है जैसे कोई आईपी एड्रेस ने कोई साइबर क्राइम हुआ है तो मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके उसको पूरा कंप्लीट चेक करूंगा कि हाँ यार ये आईपी एड्रेस है ये लोकेशन है ये ज्योग्राफी लोकेशन है ये हमारे सर्विस का आईपी एड्रेस है इसने ये वाला आईपी एड्रेस मैप हुआ है तो द नंबर ऑफ एक्टिविटीज आई नीड टू परफॉर्म मैनुअली ओके बट शोर में ऐसा नहीं है शोर में क्या होता है कि आपका कंप्लीट जैसे आईपी एड्रेस है उसको मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर उसमें मैंने प्ले बुक लिख दी एग्जैक्टली कि दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आएगा ऑटोमेटिक वो रूट हो जाएगा कि ये लोकेशन है ये लोकेशन से रूट जाएगा कि हाँ ये डेस्टिनेशन पे जा रहा था इसके बाद में ये लग जाए पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि किस एड्रेस का है किस लोकेशन से आया हुआ है ये किस किस पहले कभी आया नहीं आया पहले कितनी बार आया था ये पर्टिकुलर इश्यूज ओके एंड व्हाट द troubleshooting we have done it so automatically वो everything will be there
लेट मी आस्क यू दिस, तो हम लोग हमारी कंपनी के अंदर सिस्को यूज करते थे, वी यूज्ड टू यूज नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स और उनका मिराकी, वी हैड एवरीथिंग, एम्प वगैरह सब कुछ। तो जो भी ऐसे आईपी एड्रेसेस होते हैं जो मतलब नोन थ्रेट एक्टर्स के होते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक हो जाते हैं अपने आप ही, बिकॉज जो भी आपके सिस्को के प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर टैलोस से इंटेलिजेंस आती रहती है कि ये दिस इज अ नोन थ्रेट एक्टर रिलेटेड आईपी एड्रेस, तो वो तो वैसे ही ब्लॉक हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ना, तो हैकर, आई एम हैकर, ओके, मैं कभी भी ठीक है। जो नॉन आईपी एड्रेस को यूज नहीं करूंगा, पहली बात तो। मैं हम्म। डार्क वेब यूज करूंगा, राइट। मैं राइट। जो मैक एड्रेस होता है उसको भी चेंज कर दूंगा, आईपी एड्रेस भी चेंज हो सकता है, राइट। तो जो डार्क वेब के जो अटैक्स होते हैं, मान लीजिए किसी की, आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, उसने उठा के डार्क वेब पे डाल दिया बंदे ने, राइट। उसको भी तो ट्रैक करना पड़ेगा ना, किसने किया क्या किया, उसको भी ट्रैक करना पड़ता है हमें, एग्जैक्टली। तो वो सब जो वो तो अटैक्स होते हैं ठीक है। वो जो तुम्हारे हाँ। डार्क वेब पे जो अटैक्स होते हैं तुम्हारे, और एग्जैक्टली तुम्हारे जो भी साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो बनती है एग्जैक्टली, वो सब तुम्हारे राइट। स्टोर के थ्रू बनती है कंप्लीटली। ओके, तो सोर जो है इज बेसिकली अ सॉल्यूशन, मतलब इट्स अ एक सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, है, राइट? यस इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ सॉल्यूशन, लाइक योर सिम। सिम से अगला एडवांस जो है वो एसओए आ रहा है। अच्छा, मैंने क्योंकि आई हैव नॉट यूज्ड सोर, आई हैव नो एक्सपीरियंस विद सोर। मेरे को सिम का पता है, जो आप फंक्शनैलिटी कह रहे हो वो सिम के अंदर, आई मीन आई कैन डिग आउट दैट डेटा कि हाँ ठीक स्प्लंक है ये फैंटम रोल। है एक, और इसके अलावा ओके। हमारे पास में डेविस्टो यूज करते हैं। मैं आपको दो तीन एक कंपनीज के नाम दे दूंगा सौर के, तो आप उसको एक बार गूगल कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा, यू हैव जस्ट गॉट गुड आइडियाज अबाउट इट। ओके, आई विल हैव टू टॉक टू माय पीयर्स, बिकॉज़ मेरे को नहीं लगता मेरी मतलब जानकारी में भी जितने लोग यहाँ पे भी हैं मोस्टली आई डोंट थिंक उन्होंने, मैंने सौर सुना हुआ है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि सौर जो है ये मतलब उसका अगली चीज है, लाइक यू नो सिम, सिम का नेक्स्ट हाँ, जो क्योंकि चीज आएगी। सिम में क्या होता है एग्जैक्टली कि आपके लॉग्स अलर्ट्स जो भी हैं वो आते हैं, एंड इंजीनियर्स आर गोइंग टू वर्क अराउंड ऑन द सेम। जो थ्रेट हैंडलर्स होते हैं उन सबको भेजे जाते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट वाले होते हैं उनको भेजे जाते हैं, तो वो सब कुछ जो मैनुअल चीजें होती है। बट वी रिक्वायर सम ओके। ऑटोमेशन सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। ऑटोमेशन करना पड़ता है हमें इसका एग्जैक्टली। तो ऑटोमेशन जब राइट। करते हैं तो आपको पाइथन लैंग्वेज भी आनी चाहिए। हम्म। And ओके। then the types of audits and assessments. So different type of audits we can going to be, what talking about into this, and assessments. How are you going to do assessments? So first of all, इसमें this is a process. आप प्रोसेस होते हैं, आप प्रोसेस अगर वो सही नहीं चलेंगे तो व्हाट इज द बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, बीआईए कैसे होगा। ओके। तो बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस होगा, तो वो आपने जो गैप एनालिसिस से सर्च किया है डेटा, जो भी आपने सर्च किया है एग्जैक्टली कि हाँ ये एनए निकाल हम्म। दिया, नॉन कंप्लायंस और थिंग्स, तो उसको कैसे आपको ठीक करना है, तो वो असेसमेंट के थ्रू करोगे आप। तो वंस यू टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको कंप्लीटली तरीके से अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 90% जो वर्क होता है, राइट, सीजा में या सीजन में, वो रिस्क मैनेजमेंट का ही काम होता है, कंप्लीट सिक्योरिटी। और सिर्फ में आपने देखा होगा कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बना हुआ है कंप्लीटली। So then this is the planning, then the executions, audit, project management. तो कभी भी आप जब ऑडिट करने आते हो, राइट, तो पहले आप 1 वीक पहले या 2 वीक पहले आप पहले ही जो क्लाइंट होता है उसको बता देते हो कि दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू कम इन योर कंपनी एंड गोइंग टू डू ऑडिटिंग। ओके। तो सपोज कंपनी के पास में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए। ऑडिट समझिए कि आपको ऑडिट करना है, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको जो कॉस्ट मैनेजमेंट होता है उनका, कॉस्टिंग, उनका जो स्कोप मैनेजमेंट होता है, स्कोप, क्या स्कोप है इसका, करने का फायदा भी है या नहीं है इसका, है ना। और ओके। रिस्क मैनेजमेंट है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, उन सब का। तो इसमें जो ओके। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए वो पता होना चाहिए। अब सपोज यू आर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट वेयर ऑयल एंड इंडस्ट्री का कर रहे हो आप, मान लीजिए आप, या फिर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ केयर डोमेन का कर रहे हो, तो आपको डोंट हैव एनी आइडिया, यू आर प्रेशर फॉर द सेम, आपको ऑडिट पूरा पता है, बट यू डोंट नो हेल्थ केयर थिंग्स और ऑयल एंड इंडस्ट्री। वेट सेकंड, हेलो, यस टेल मी।
Yes. Yes, tell me. I'm in meeting right now. Yeah. No, not exactly. Not next year. Call me next year. Not this year. Hello. Yes. Yeah. So, the project management में exactly the scope management, cost management, okay, the Mhm. risk management. तो ये दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आप कैसे स्कोप मैनेजमेंट करोगे, कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे। जिस चीज का स्कोप ही नहीं है और उसका आप ऑडिट करे जा रहे हो तो देयर इज नो यूज ऑफ इट, क्योंकि कंपनी के लिए अभी फायदेमंद है, आगे फायदेमंद है या नहीं है कुछ कह नहीं सकते। आपको आज आज ऑडिट करवाएंगे, अगली बार ऑडिट के लिए बुलाएंगे नहीं आपको, ये भी है, हो सकता है। सो ऑडिट कंपनी का कंपनी का विजन मिशन और उसके जो नेक्स्ट 5 ईयर्स नेक्स्ट ईयर जो टेक्निकल और ये ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि what the company is required, company is what is asking about it, company what is going to be achieve it। Got it. एंड सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी होती है, राइट। इसमें Mhm. कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर सैम्पलिंग में कि आप कितने, जैसे 1000 हैं आपके उसमें प्रोसेसेस होते हैं, राइट। आप 20 या 30 को करके आप ये नहीं कह सकते कि 70% जो बचे हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं, Mhm. राइट। तो उसमें क्या होता है कि जितने आप सैंपल्स, जैसे आप 1000 हैं तो आपने कंप्लीट 1000 या 998 तक कर दिया आपने, Mhm. ऑडिटिंग कर दिया, तो आपकी कितनी Mhm. एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ सकती है। जितनी आप Right. कम इन्फॉर्मेशन लोगे, कितनी जितने आप कम सैंपल लोगे तो उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आने की संभावना बहुत कम रहेगी उसके अंदर। तो वी हैव डिफरेंट मैथोलॉजी स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं इसके लिए कि Mhm. हम कितने परसेंटेज में कितना ले सकते हैं, कितना परसेंटेज में कितना ले सकते हैं, तो किससे कितना बेनिफिट Mhm. हो सकता है, राइट। तो Right. just talking about in the next few slides on the same audit evidence and collections techniques। So audit evidence. So first of all, why we require the evidence? In the forensic investigations, we require evidence, right? And in the auditing, we require evidence. So what is the difference between two things? महेश आपका एक सेकंड हैंग ऑन we'll control this space. Are we talking about the same slide जिसके ऊपर आप हो ऑडिटिंग प्रोसेस के ऊपर या आप Yes, दूसरी कोई स्लाइड की बात no, कर same slide, same. रहे हो? ऑडिट एविडेंस कलेक्शन अरे गॉट इट ठीक है So I have one question. In suppose you are doing a forensic investigations, okay, हम्म digital हाँ forensic जी investigations, you हाँ require जी evidence, हाँ right? जी And some company, and you are in some different company, you are a IT auditor, okay, ठीक है information security auditor, हम्म you require evidence। So what is the difference between this evidence and this different evidence? वेल फोरेंसिक जो है वो तो I mean when you're talking about forensic investigation I think okay let's take it from the top first पहले एक चीज एड्रेस करते हैं अगर आप आईटी ऑडिटर हो तो आप एविडेंस कलेक्ट करोगे इंटरव्यूज से आप स्नैपशॉट्स लोगे मतलब यू विल बी टेकिंग स्क्रीनशॉट्स एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर राइट Mm-hmm. लॉग स्निपेट्स लोगे ज्यादातर जो मेरे को पता है ऐसे ही ऑडिट होते हैं जो आईटी ऑडिट इवन पीसीआई डीएसएस के ऑडिट दे टेक स्निपेट्स Mm-hmm. ये सारी एविडेंस होगी फोरेंसिक इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम फोरेंसिक में यू हैव टू मेक श्योर कि जिस तरीके से आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो पहली बात वो आपका जो जैसे आप सिस्टम की मेमोरी की एविडेंस ले रहे हो या कुछ कर रहे हो अगर आप उसको क्लोन आई वोंट से क्लोन उसको इमेज कर रहे हो सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस ना आए आपका जो एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस होगा दैट शुड नॉट इन एनी वे चेंज द एविडेंस और उसको डॉक्यूमेंट करने का तरीका बहुत अलग होगा जब आप फोरेंसिक्स कर रहे होगे तो the way you document it you have to make like a like a receipt for everything saying that okay this is what I collect this is your copy of it this is my copy of it and then you
do your investigation on the evidence that you collected, or rather, the images that you collected, but not on the actual system. Mhm. Does that make any sense? Yes, but I required some more technicalities into the same. Okay, all right. मेरे को यही याद है फोरेंसिक्स के अंदर से। आई एम सॉरी, मेरे को बहुत टाइम हो गया फोरेंसिक्स को देखे हुए। ओके, मैंने एक चीज अभी ओपन की है, आप लाइक दिख रहे हैं, व्हाट इज एविडेंस? हाँ जी, दिख रहा है मेरे को। So once we going into the forensic investigations, this is the different story, my dear. And once we're going into the ICE audit, information auditing sort of things, this is separate हाँ story, right? हाँ जी। Once we're going for the information security auditing, right? हाँ जैसे आप ऑडिटिंग की बात करते हो, तो उसमें डजेंट मैटर कि टाइम स्टैम्प क्या है क्या नहीं है, आप इतना डिस्क्राइब, इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं भी होगी तो भी चलेगी. तो द 5 things: authentic, accurate, complete, convincing, and admissible. If you have seen into this 5 terms, this is the requirement in the forensic investigations. ओके, ठीक Proper है। accurate तरीके से देखा जाता है इस चीज को, right? But if we're गॉट talking इट, गॉट about इट। into the information security auditing, आपके हाँ ऑथेंटिक नहीं भी हैं, थोड़ी बहुत चलेगी, एक्यूरेट नहीं है बट उससे मिल खाता है, ठीक है यार. मान लीजिए कि आपका वेंडर है, उसने इनवॉइस दिया, अब वो राइट 10 तारीख बाद में भी हो, 10 दिन आगे पीछे हो, वो चल जाता है, एविडेंस है, राइट ठीक है यार. राइट। बट इन द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस वी रिक्वायर द सेम ऑडिट इनवॉइस चाहिए, एंड सेम इनवॉइस का हैश वैल्यू भी चाहिए हमें, राइट? ओके, उसकी क्या हैश वैल्यू है वो भी चाहिए हमें, उसकी टाइम स्टैम्प भी चाहिए, राइट। कंप्लीट. तो जब हम बात करते हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की, राइट, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सो एवरीथिंग रिक्वायर्ड एक्यूरेट, because this या particular evidence going to the court, admissible in the राइट। court, okay? And this particular event is going to the admissible in the court because court is required authentic approval, authentic, accurate, and complete and convincing, हाँ okay, informations. So that is why the difference between the evidence into the different platform is, it matters a lot. ओके, ऑल राइट। Wait a second, I'm going to... Yeah, don't worry about it. Mahesh, I wanted to ask you something. So, इसके अंदर do you have any templates for doing risk assessments? Yes, I will going to provide you, no problem. Okay, all right. Yeah, I'll need those. Yes, I'm going to provide you, no problem with it. I have number of things. I'm just going to send you some books as well, PPTs आपको and PDFs, everything. I'll tell you what, आप मेरे को बुक्स भेजेंगे ना, मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, and I have like a large collection of security books. Okay, तो okay, उसमें से आप देख लीजिएगा, अगर आपको चाहिए होगा, I am always happy to share knowledge. So okay, no you problem, can. sir. Sure, definitely. ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड मेरे को एक और चीज, आई नीड योर नंबर सो दैट आई कैन कांटेक्ट यू एंड टेल यू अगर कभी क्लास का जैसे आगे पीछे हुआ, कुछ हुआ, बिकॉज मैं अभी अमिताभ सर को बोलता हूँ, वो शायद आपको मैसेज भेजते हैं, Right, सो right, आई right. वांट टू कट दैट आउट। वो आपको मैं भेज देता हूँ नंबर, आप कोई नहीं. ठीक है। This is my WhatsApp number, so you just want to connect me over there. ठीक है, ऑलराइट। Okay, so you can connect me anywhere. Okay, then sampling evidence techniques, data analytics. So, do you know data science is all about? आई नो, मेरे को ये पता है कि डेटा साइंस क्या है, बट मैंने अपने आप कभी मतलब डेटा साइंस के टुवर्ड्स कभी ध्यान दिया नहीं। आई हैव ऑलवेज बीन इनटू सिक्योरिटी, तो वही मेरे को पता है। बट हाँ, डेटा साइंस का मेरे को पता है, डेटा एनालिटिक्स वगैरह का यूजेज क्या है। डेटा Data एनालिटिक्स हमारी सिक्योरिटी में भी काफी यूज होता है, सिम data सॉल्यूशन mining, वगैरह के अंदर, और जो सॉफ्ट सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर होता है यूज। data mining किए कभी आपने? Data mining? नहीं, मैंने नहीं की, बट मैं सीखना चाहता हूँ डेफिनेटली, बिकॉज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Yes, yes. So, as a security professional or is a information security, आप
CISA, CISM, CSP, SRIX, CCSP, whatever certifications you want to pick it, you should be very good in data analytics. Okay. Okay, first thing is the second thing is artificial intelligence, machine learning, IoT, Internet of Things. Every technologies are required data analytics. So data analytics, because some time ago, if you have heard about it, Informatica. Informatica is a tool. Informatica, it's a tool. Okay. It's a software. It is going to do, data analytics sort of things. तो कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली कि डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है कि जैसे आप बिजनेस नंबर जो है ना, दैट्स नॉट ऑन व्हाट्सएप, ये वाला जो है दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. आई थिंक आपको शायद या तो नंबर आपने गलत लिखा है या मे बी देयर इज अनदर नंबर. वेट सेकंड, I'm checking it out. 80765127449. Yeah, it's the same number. Same. Are you sure? Because yes. WhatsApp pe, I cannot find it on WhatsApp. No, it's a WhatsApp number. It's my Delhi number is 91 code of India. Code of India. Oh, right. Damn it, मैंने +1 लगा दिया. Oh, ठीक है, समझ आ गया. Okay, got it. My mistake. Sorry. My mistake. Okay, now it will be fine. ठीक है. मेरे को +1 करके नंबर सेव करने की इतनी आदत हो गई है that हाँ, मैं समझ गया था. I understand, you know what, we are teachers, so we understand कि कौन बंदा कहाँ गलती कर सकता है. We easily understand because हम इस चीज के यूज हो चुके हैं कि कहाँ हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच कहाँ हो सकता है. I know. चलो ठीक है, good. Now I have you on WhatsApp. ठीक है, good. Let's continue. So डेटा एनालिटिक्स में हम मशीन इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर IoT या फिर मशीन लर्निंग, आप रोबोटिक्स की बात करते हैं, आप RPA की बात करते हैं या ड्रोन्स की बात करते हैं, राइट. डेटा एनालिटिक्स you should be going to do it. So MongoDB, big data, there are a number of things, data analytics. So why we require this data analytics? First of all, the data analytics we required because we take a decision. अगर आपके पास में डेटा है तो आप एनालाइज करके उस पर डिसीजन ले सकते हो. What type of decision I'm talking about here? Decision related to any, like, you know, अगर आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो, for instance, कि I don't know which application, you know, non-sanctioned application is being used in the company, वो देखने के लिए, या कौन सी application जो company में use हो रही है जो सबसे ज़्यादा bandwidth ले रही है, वो देखने के लिए. At the end of it, जो भी हमारे solutions है, जो dashboards के अंदर आती हैं, जितनी भी information है, तो वो data analytics ही एक तरीके से. Okay. Raw data analytics, I don't know वो कितना use होता है. Maybe for a custom use case. हो सकता है if you're like a retail company, तो you're trying to find कि, I don't know, कौन से महीने में customers कौन सी चीजें ज़्यादा खरीदते हैं, that sort of a thing. That's like more raw data, and raw in the sense that it's very use case based. Okay, yeah, sure. So आपको थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स का मतलब ये है कि आपको डिसीजन मेकिंग इंटेलिजेंस ऑटोमेशन तरीके से, जितने भी आज का भी मैंने बताया आपको कि सोर्स सॉल्यूशन है, सिम सॉल्यूशन है, उसमें डेटा आता है. बस अब डेटा को वो कैसे उसको एनालाइज कैसे करते हो वो डिपेंड करता है आपके एक तो टूल्स के ऊपर, एक जो ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ उसके ऊपर, वो कैसे उसको ट्रैक करता है चीजों को. तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव जो तुम्हारे लॉस होते हैं बहुत ही मैटर करते हैं इसके अंदर. तो मैं उसकी बात करता हूं. Hello, yes, talking about. Yes, I'm labeled. I'm going to log in 2 minutes. Oh, really? Yes, I'm going to log in. And then the reporting and the communications. So it's also the part of it, you know what, how are you going to communicate and how are you going to communicate and reporting.
techniques. Mm. So this is also the execution, because you have done lots of hard work, you have created the reports, okay, and it matters that how you're going to communicate to the top management and whether they are going to convince with your statements or not. This is also very important respect. Mm. Okay, and suppose you are going to do auditing, okay, and after you doing auditing and you creating some NCs, okay, non-compliance for 5 or 6 uh, numbers, okay, and after 2 months later or 3 months later you providing timing 1 to 2 months, okay, just going to work around on the same and let us know. Mm. So reporting and communication is very important prospects. How do you going to communicate, how are you doing to reporting, and the number of people working on the same or not. So it's their responsibility, because you just going to provide the the certifications of ICE or whatever PCI DSS. Mm. Once they are going to clear all those points, okay. So same time, time to time, you need to be check it out whether the things are working as per the expectations or not, whether they are going to be value for the money or not, and the company vision is going to fulfill or not, okay. And the communication channels can be different types. So most of the times we are going to use some email solution, but apart from this, uh, what the alerts and monitoring sort of things going to be configured on your devices, okay. And how do you going Mm. to check it out, this is the threat will be coming. So you should be going to some automation of the communications and reporting into the Right. cloud environment, most of the times in the cloud environment, if you just check it out, okay. Because the auditors will going to ask you the question, suppose this services goes down or server will be crashed or hard disk utilization very high. So the load balancers we need to configure it on the cloud side, okay, cloud security point of view. So in the Mm. load balancers we need to check it out what how many number of instances we're going to implement, okay. So as a security professionals, then you need to check it out the monitoring console, alarm, Mm. okay, and alerts, okay. Because the most of the times, if you're talking about the bring your own device, okay, BIOD devices, you're just going Mm. to allocate some mobile devices or to different people, and the people are going to be leave the Right. company, okay. And the And data might be with them. data is the issue, okay. So the reporting and communications matters a lot sometimes. So this is the things you're going to check it out, the data is wiped out or not wiped out, and what is the conditions, where is the logs available of wiped out, all those things required. So Okay. Okay. today we have just going to this all things, and I think it's enough Yeah, for that's today. perfect. Yeah. Enough for today. We will reconvene again on Monday, right? Yes, sure, sure. All right, perfect. So ठीक है. आप मेरे को अभी ये स्लाइड्स वगैरह भेजोगे या like how do you want to do it? मैं आपको आपने को व्हाट्सएप पे आ जाओगे तो मेरे को एक आपका ईमेल आईडी दे देना, राइट, तो मैं आपको ईमेल आईडी मैंने पे ही आपको सेंड कर। WhatsApp पे अभी मैसेज करा है. मैं आपको अभी यस अपना यस आई गॉट। ईमेल आईडी भेज रहा हूँ. Uh, that's my email ID. So now you have that. And Baki, I'm gonna think about all of this stuff that we've read today. I'll do a little bit of reading as well, hopefully over the weekend if I can. बाकी मंडे को फिर मुलाकात होती है and या best of luck with your shifting. या श्योर श्योर So श्योर। आप दिल्ली से शिफ्ट हो गए हैं क्या जयपुर? नहीं एग्जैक्टली मैं अभी दिल्ली में आया, दिल्ली से जयपुर में आया हूँ एग्जैक्टली कि कुछ मैरिज वेज पर्पस के लिए अपने। तो ओके ओके. तो थोड़ा सा लॉकडाउन था तो वहाँ पर 4 मंथ्स में बोर हो गए थे घर बैठ के, तो फिर थोड़ा सा लगे कि यार थोड़ा सा जयपुर में अपने अपने होम रिलेटिव्स के यहाँ पर थोड़ा सा, हमारे यहाँ पर कुछ जमीन वमीन भी है काफ़ी विलेज में, तो थोड़ा सा ऐसे ही आ गए थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए। अच्छा अच्छा. Okay, all right. Well, best of luck with your marriage thing then. In that case, whatever you're doing, it was good talking to you, Mesh. You have a good weekend. I will see you on Monday, same time. Yeah, perfect. Thank Thank you. you. Bye.